السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کی قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ منگنی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ باہر لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ساری لڑکیاں مل کر یشرا کو تیار کر رہی تھیں۔ میری بات دھیان سے سنو، پہلا امپریشن ہے لڑکی کے سامنے، خدا کے لیے مجھے چڑیل نہ بنا دینا۔ یشرا زامیش اور حنیم کی طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ سے کہنے لگی۔ بے فکر رہو، ایسا خوبصورت تیار کریں گے کہ لڑکا نظریں ہی نہیں ہٹا سکے گا۔ زامیش اسے کہتے ساتھ اس کے چہرے پر فاؤنڈیشن لگانے لگ گئی۔ اللہ خیر کرے۔ یشرا تھوک نگلتی اسے دیکھ کر بولی۔ زامیش اور حنیم اسے گھور کر دیکھنے لگ گئے۔ اب تم خاموش رہو، میک اپ کرنے دو، ہمیں بھی تیار ہونے۔ حنیم اسے سختی سے منع کرتے ہوئے بولی، جس پر یشرا سر کو خم دے گئی اور وہ دونوں اس کا میک اپ کرنے لگ گئی۔ یشرا کو تیار کرنے کے بعد حنیم اور زامیش بھی تیار ہونے کے لیے اپنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ یشرا نے مرر میں اپنا عکس دیکھا، اس کا واقعی بہت اچھا میک اپ ہوا تھا، جس پر وہ مسکرا دی۔ سب مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ لڑکے اور گھر کے بڑے تیار سے لان میں موجود تھے۔ زہران سیاہ رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے، بڑی ہوئی بیئرڈ میں چہرے پر بھرپور سنجیدگی سجائے، حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اذہان نے بھی براؤن شلوار قمیض زیب تن کی ہوئی تھی، جو اس پر بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ تبھی حنیم پھولوں کی ٹوکری اٹھا کر باہر آئی۔ اذہان کی نظر اچانک ہی اس پر گئی۔ لائٹ گرین کلر کے خوبصورت ڈریس میں بالوں کو کھول کر لائٹ سے میک اپ میں وہ اس وقت بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اذہان کی ہارٹ بیٹ مس ہو گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا تھا۔ آج تو یہ چشمش بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے، اذہان مسکراتے ہوئے دل میں خود سے بولا۔ حنیم نے اسے دیکھا اور منہ بنا کر آگے کی جانب بڑھ گئی۔ آج میڈم خوبصورت کیا لگ رہی ہیں، آنکھیں بھی ماتھے پر ٹکائے پھر رہی ہیں۔ اذہان خود میں بڑبڑاتے ہوئے اس پر نظریں جمائے کہنے لگا۔ زہران نے اس کی جانب دیکھا۔ تم نے کچھ بولا ہے؟ زہران اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اذہان ایک دم گھبرا کر نفی میں سر ہلا گیا۔ سب آ گئے ہیں، یہ مس نکچڑی کہاں ہیں؟ زہران اندر کی طرف نظریں کرتے ہوئے زامیش کو موجود نہ پا کر دل میں بولا۔ تبھی وہ آتی دکھائی دی، کاپر رنگ کے ڈریس میں جس پر نفیس سا کام ہوا تھا، ساتھ میں سرخ دوپٹہ سائڈ پر لیے، بالوں کو کرل کیے، لائٹ سے میک اپ میں، ہونٹوں پر مرون لپسٹک لگائے، وہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ زہران کی نظر اس پر گئی تو وہ نظریں ہٹانا بھول گیا۔ لکنگ سٹرننگ، زہران اسی پر نظریں جمائے پلک جھپکائے بے اختیار بول گیا۔ اذہان نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ زامیش کی نظر بھی اس پر گئی۔ اسے خود کو دیکھتا پا کر وہ ایک دم کنفیوز سی ہوئی تھی۔ یہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں، کہیں کچھ کرنے تو نہیں والے؟ زامیش اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی، نظروں کا تعاقب دوسری سمت میں کرتے ہوئے دل میں سوچنے لگی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی میں فنکشن انجوائے کروں گی۔ بہت وقت کے بعد کوئی ایسا فنکشن دیکھنے کو ملا۔ زامیش فوراً سے اپنی سوچ ہٹکتی حنیم کی طرف بڑھ گئی۔ ارے ماشاء اللہ، ہماری زامیش بچی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ فریدہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر تعریف کرنے لگی۔ بہت شکریہ خانم۔ زامیش مسکراتے ہوئے دل سے شکریہ ادا کرنے لگے۔ ابرار خانزادہ اسے خوش دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ جو بھی تھا، ان 15 دنوں میں وہ اس گھر کے لوگوں کی قریب ہو چکی تھی۔ یہ اذہان بھائی کیوں اسٹیج پر چڑھ کر بیٹھے ہیں؟ زامیش اسٹیج پر سفید رنگ کی شلوار قمیض میں اوپر وائٹ ہی ویسٹ کوٹ پہنے اذہان کو دیکھتی حنیم سے پوچھنے لگی۔ مجھے کیا پتا؟ حنیم ناسمجھی سے کندھے جھکا کر جواب دینے لگی۔ زامیش اسے دیکھنے لگ گئی۔ مجھے شک تھا، لیکن اب یقین ہو گیا، داجی یشرا کی منگنی اذہان سے ہی کر رہے ہیں۔ زامیش خود میں بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ حنیم اسے دیکھنے لگ گئی۔ کیا بولے جا رہے ہیں؟ حنیم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ گھما کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں۔ زامیش اپنے چہرے کے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دینے لگی۔ جاؤ لڑکیوں، یشرا کو لے کر آؤ، منگنی کی رسم کا وقت ہو گیا۔ ذکیہ محترمہ زامیش اور حنیم کو دیکھتے ہوئے پیار سے بولی۔ وہ دونوں اوپر کی طرف بڑھ گئیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ حنیم اور زامیش کے پہلو میں چلتے ہوئے ٹی پنک کلر کے فراک میں، جس پر نفیس سا سلور رنگ کا کام ہوا تھا، سر پر ہم رنگ دوپٹہ کیے، لائٹ سے میک اپ میں، ہونٹوں پر پنک لپسٹک سجائے، وہ نظریں جھکائے چلتے ہوئے آتی ہر ایک فرد کو اپنی جانب متوجہ کر گئی۔ اذہان اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ واہ یشرا، تم تو آج بہت حسین لگ رہی ہو۔ یشرا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے چلتے ہوئے آ رہی تھی، اذہان کے پاس سے گزری۔ وہ مسکرا کر اسے کہنے لگا۔ یشرا کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ اسٹیج کے قریب پہنچی تو اذہان اسٹیج سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھتا اسے ہاتھ بڑھا گیا۔ یشرا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی، جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ تو مجھے بعد میں دیکھ لینا۔ اذہان اسے مسلسل خود کو دیکھتا پا کر ہنس کر کہنے لگا۔ یشرا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کانپتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ گئی۔ سب کزنس نے ہوٹنگ کی اور اذہان نے اسے اپنے ہمراہ اسٹیج پر بٹھا دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر یہی کرنا تھا تو وہ سب کیوں کیا؟ یشرا اسٹیج پر بیٹھتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے کہنے لگی۔
सरप्राइज़? कैसा लगा सरप्राइज़? अजहात भी मुस्कुराकर सबको देखता उससे पूछने लगा। यशरा ने उसे देखा। बहुत ही बुरा, यशरा उसे मुंह बनाकर कहती सामने देखने लगी। अजहात की मुस्कुराहट गहरी हो गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। मेरे ख्याल से अब मंगनी की रस्म अदा कर लेनी चाहिए। एहसन खानज़ादा ने अबरार खानज़ादा को देखते हुए बोला। अरे ऐसे कैसे? मेरे इकलौते भाई और इकलौती बेस्ट फ्रेंड प्लस भाभी की मंगनी है, ऐसे फीकी फीकी तो नहीं करेंगे? अजहान फ्लोर पर आते हुए ऊंची आवाज़ में कहता सबको हंसने पर मजबूर कर गया। ये हुई ना बात। यशरा भी पुरजोश सी खड़ी होती उसे कहने लगी। अजहात ने एकदम उसे वापस बिठाया। तुम दुल्हन हो यशरा। अजहात उसे देखते हुए नरमी से कहने लगा। यशरा उसे मुंह बसूर कर देखने लगी और फिर सामने देखती तालियां बजाने लगी। मेरा भाई सीधा साधा है, ये लड़की चैन चबीली है रंग रूप तो ठीक ठाक, भेजे की थोड़ी ढीली है। ओए बलिए ओए बलिए। अजहान स्टेज पर उन दोनों के पास आते हुए हंसकर डांस करता बोला, जिस पर यशरा उसे घूर कर देखने लगी और अजहात के लब ऊपर को उठे। अजहान के डांस के बाद सब कजन्स ने मिलकर लुड्डी डालने लग गए। हनीम जामिश को भी ले आई। जामिश दुपट्टे गले में डालती खुशी से लुड्डी डालने लग गई। वह सब लोग लुड्डी डाल रहे थे। ज़ारान एक साइड पर खड़ा खामोशी से ये सब देख रहा था। अचानक नज़र जामिश पर गई, जिसका गला डीप था। ज़ारान के माथे पर शिकनी उभरी। वह आसपास नजर दौड़ाने लग गया। सब लोग डांस देखने में मगन थे। वह भारी कदम उठाए जामिश की जानिब बढ़ा और उसकी नाजुक कलाई को अपने मजबूत गिरफ्त में लेता अंदर की तरफ बढ़ने लगा। जामिश परेशान निगाहों से उसके साथ चलती उसे देख रही थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। ज़ारान उसे हनीम के रूम में लाता उसका दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके उसे दरवाजे से बंद कर गया। क्या बदतमीज़ी है ये ज़ारान। जामिश अपनी कलाई छुड़वाने की सही करती उसे गुस्से भरी निगाहों से देखती कहने लगी, दुपट्टे को खोल कर लेते हैं ऐसी। ज़ारान उसकी गर्दन से दुपट्टा निकालता उसे पहनाते हुए सर्द लहजे में कहने लगा, मेरी मर्जी में जैसे मर्जी पहनूं। जामिश उसकी बात पर मज़ीद तपकर नाक फुलाकर उसे कहती, दुपट्टा वैसे दोबारा करके। तुम्हारी मर्जी नहीं है, तुम मेरे निकाह में हो, तुम ज़हरान खानज़ादा की इज्जत हो और मेरी बर्दाश्त से बाहर है कि मेरी इज्जत को कोई आंख उठाकर भी देखे। ज़हरान उसके बाजू में मज़ीद गिरफ्त मजबूत करता तने हुए असाब लिए खुर्राया, किसी के पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि वह सिर्फ मुझे देखता रहेगा। सामिश चेहरे पर तकलीफ दे तासुरात सजाए दांत पीस कर बोली, आई डोंट केयर, तुम अपना वजूद ढक कर रखा करो, समझी। ज़हरान उसे अपने करीब खींचते हुए उसके चेहरे पर अपनी सुर्ख निगाहें संजीदा निगाहें मरकूज़ किए तैश में बोला। वो घबरा कर रह गई। बहुत जल्द आपसे तलाक लूँगी मैं ज़हरान एहसन खानज़ादा, और उस दिन आप मुझ पर किसी किस्म का कोई हक़ नहीं रखते होंगे। जामिश उसके आंखों में आंखें डालकर चिल्ला कर कहने लगी, बहुत शौक़ है ना तुम्हें मुझसे तलाक लेने का, तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तैयारी पकड़ लो, क्योंकि बहुत जल्द रुखसती करवाने वाला हूँ और अपना हक़ लेने वाला हूँ तुमसे। ज़हरान लबों पर पुरस्रार मुस्कुराहट से जाए उसे कहते साथ खुद को घूरने पर मजबूर कर गया। मैं रुखसत होने से बेहतर मरना पसंद करूँगी। जामिश भी उसी पर नज़रें मरकूज़ किए बगैर डरे गुराते हुए उसे बताना ज़रूरी समझने लगी, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ज़हरान उसे झटके से खुद से दूर करता कंधे उचकाकर कहते साथ बाहर की तरफ बढ़ गया। मैं क्यों मरूँ, बदतमीज़ इंसान। जामिश उसकी जाती हनूज़ मुँह बसूर कर खुद से बोलती दुपट्टा ठीक कर दी बाहर की तरफ बढ़ गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। मंगनी की रस्म अदा होने के लिए हवेली के तमाम लोग स्टेज पर मौजूद थे। समारा मोहतरमा ने अजहात की जानिब से अंगूठी बढ़ाई। अजहात ने थाम कर यशरा की उंगली में पहना दी। सब घरवालों ने खुशी से तालियां बजाईं और वहीं ज़किया मोहतरमा ने यशरा को अंगूठी थमाई। यशरा ने अजहात को पहना दी। एक बार फिर तालियां बज गईं और फिर फ़ोटोशूट शुरू हो गया। पहले अजहात और यशरा का, फिर हवेली के तमाम लोगों के साथ तस्वीरें बनने लग गईं। मंगनी की तकरीब बहुत अच्छी हुई थी। सारे मेहमान जा चुके थे, जबकि हवेली वाले टीवी लाउंज में इकट्ठे हुए थे। जामिश और हनीम चाय बना रही थी। मैं हेल्प कर दूँ? अर्शमा किचन में आते हुए उन दोनों को मुखातिब किए पूछने लगी। नहीं, हम कर लेंगे, और वैसे भी आप मेहमान हो। जामिश लबों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए चाय कप में डालते हुए उसे कहने लगी, नहीं, मैं तो इस हवेली को और इन हवेली के लोगों को अपना मानती हूँ। मुझे सब बहुत पसंद है, और ख़ास तौर पर मेरा कज़न ज़हरान। अर्शिमा मुस्कुराते हुए उसके बाद झट से बोलती जामिश का मुँह बनाने में कामयाब हो गई। एक बात कहूँ अर्शिमा, ज़हरान भाई बोला करो, आपसे पूरे 5 साल बड़े हैं। जामिश उसकी जानिब देखते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराहट से जाए उसे बोली। अर्शिमा उसे देखने लग गई। तुम्हें मेरा ज़हरान से फ्री होना बुरा लगता है? अर्शिमा उसके पास आते आईब्रोज काकर मुस्कुराते हुए सवाल करने लगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जामिश उसकी बात पर फ़ौरन से उसे जवाब देती है ट्रे में कप रखने लगी। लग तो ऐसा ही रहा है, वरना तुम मुझे कभी ना बोलती कि मैं उसे भाई बोलूँ। मगर डोंट वरी, मैं आपसे उसे भाई कहूँगी। अर्शिमा उसे कोहनी मार कर कहती है साथ बाहर की तरफ बढ़ गई। जामिश उसे जाता देखने लग गई। चलें ये लें, चलते हैं। हनीम उसे मुस्कुरा कर देखते हुए कहने लगी, और वो दोनों किचन से बाहर की तरफ बढ़ गई। सब लोग टीवी लाउंज में बैठे थे, गपशप कर रहे थे।
अज़हात को मालूम था मगर यशरा को इसका मालूम नहीं था, तो मुझे लगता है बच्चों को कुछ देर के लिए अलहदा कर देना चाहिए। फरीदा बेगम यशरा और अज़हात को देखते हुए बोली, जिस पर अज़हात फ़ौरन से खड़ा हो गया और यशरा को खड़ा करने लगा। मेरी चाय। यशरा जामिश के हाथ में चाय की ट्रे देखते मुंह बनाकर बोली। अज़हात ने उसे देखा और नफ़ी में सर हिलाकर ट्रे की जाने बढ़ा। थैंक यू। अज़हात 2 कप उठाकर जामिश को देखकर कहते साथ यशरा को अपने साथ चलने का इशारा करने लगा। यशरा उसके साथ चल दी। जामिश बैठती ट्रे बीच में रख गई। सब लोग चाय के कप उठाने लग गए। भाई मैं तो जामिश के हाथ की चाय की फ़ैन हो गई हूँ, समारा मोहतरमा मुस्कुराते हुए उसे देख कर बोली। जामिश ने उन्हें देखा और जवाबन मुस्कुरा दी। दादी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ज़हरान संजीदा लहजे में अबरार खानज़ादा को मुखातिब करता हुआ सबको अपनी तरफ मतवज्जा कर गया। बोलो ज़हरान बेटा। अबरार खानज़ादा उसे मुस्कुरा कर देखते हुए पूछने लगे। मैं जामिश को रुखसत करके अपने कमरे में लाना चाहता हूँ। ज़हरान उसे आंखें दिखाकर मुस्कुराते हुए अबरार खानज़ादा से बोला तो जामिश के गले में गिल्टी उभरी। ये तो बहुत अच्छी बात है जामिश बेटा। अबरार खानज़ादा ज़हरान की बात सुनकर वाकई खुश हुए थे और जामिश से उसकी राय जानने लगे थे। जी दादी मैं अभी रुखसती के लिए तैयार नहीं हूँ। जामिश फ़ौरन इस बात में सर हिलाकर मना करती। ज़हरान को गुस्सा दिलवा गई। उसकी मुस्कुराहट सिमट गई और सब लोगों की खुशी भी एक दिन ख़त्म हो गई। कोई बात नहीं, जब आपकी रजामंदी होगी हम तब रुखसती करेंगे। अबरार खानज़ादा उसे प्यार से मुस्कुराते हुए कहने लगे। जामिश भी हल्का सा मुस्कुरा गई। सब लोग फिर से अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए और जामिश ने उसे मुँह चढ़ा दिया। रुखसती तो अब इसी महीने होगी। ज़हरान दिल में खुद से अहद करते हुए उसी पर नज़रें मरकूज़ किए बुलता चाय का कप लबों से लगा गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रही हैं। असूलन मुझे आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए जितना आपने हर्ट किया है और मुझ पर गुस्सा किया। यशरा से आंखें झूठी किए घूरते हुए खफकी ज़ाहिर करती कहने लगी। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी और मोहब्बत का इजहार मैं यूँ नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था तुम मेरे नाम की अंगूठी पहन लो, मैं फिर करूँगा। अज़हात उस पर अपनी गहरी नज़रें जमाए उसे नर्म लहजे में कहने लगा। हाँ तो अब पहन भी लिया तो कौन सा कर लिया। यशरा मुँह बनाए अंगूठी को देखती उसे बोली। अज़हात के लब ऊपर को उठे और उसे देखने लगा। मुझे तुम शुरू से बेहद पसंद थी यशरा, मगर अज़हात के साथ हद से ज़्यादा दोस्ती तुम्हारी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी और तुम्हारी फजूल हरकतें। तुम 21 साल की हो, तुम में थोड़ी सेंस भी नहीं है, मगर क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूँ। इस दिल में समा चुकी हैं आप यशरा एहसन खानज़ादा, और मैं वादा करता हूँ मेरी आखिरी सांस तक सिर्फ आप ही रहेंगी इस दिल में। अज़हात उस पर गहरी नज़रें जमाए उसे गंभीर लहजे में मुस्कुराते हुए कहने लगा। यशरा उसे मुँह बनाकर देखने लगी। ये इजहार मोहब्बत था, ये मेरी बेइज्जती। यशरा नज़रों का ताकुब दूसरी सिमत करते हुए उससे बोली। मुझे तो ऐसा ही आता है करना। अज़हात साहब कोई से उसे जवाब दे गया। ना चाहते हुए भी यशरा हल्का सा मुस्कुरा गई और वो दोनों चाय पीने लगे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। रात के करीबन 2 बजे सब लोग अपने रूम में चले गए थे। हनीम भी सुबह कॉलेज होने की वजह से अपने रूम में चली गई थी। जामिश भी रूम की तरफ बढ़ रही थी जब किसी ने उसकी बाजू खींचकर अंदर की जानिब खींचा। इससे पहले कि वो चीख मारती ज़हरान उसके मुंह पर हाथ रख गया। जामिश आंखों में खौफ लिए उसे देखने लगी। आप पागल हैं, आपने डरा दिया मुझे। जामिश उसका हाथ अपने मुंह से हटाती आंखें छोटी किए बोली। तुमने इनकार क्यों किया। ज़हरान उसी पर नजरें जमाए भारी लहजे में पूछने लगी। जामिश उसे देखती तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजा गई। आप क्या समझी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। निकाह में होते हुए भी आप ताउमर कबारे रहेंगे, क्योंकि जब तक मैंने हामी नहीं भरनी दाजी हाँ नहीं करेंगे। जामिश इतराकर सीने पर बाजू बांध कर उसे देखती जतलाने वाले अंदाज में कहने लगी। और अगर रुखसत इसी महीने हुई तो। ज़हरान उसके चेहरे के करीब चेहरा लाता सवाल करने लगा। जामिश उसके करीब आने पर सटपटाई और दीवार से लग गई। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जामिश खुद को कंपोज करते हुए सुनामल अंदाज में जवाब देने लगी। ज़हरान खानज़ादा जो बोल दे वो करके रहता है, तैयारी कर लो, कल रात तुम्हारे सर पर बम फटने वाला है मिसेस ज़हरान खानज़ादा। ज़हरान लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए गर्दन तिरछी करके उसे जवाब देने लगा, जिस पर जामिश बस उसे घूरती रह गई। आज के बाद आप मुझे इस तरह खींचिएगा मत, वरना। जामिश अपनी शहादत वाली उंगली उसकी तरफ करते हुए उसे वार्न करने वाले अंदाज में बोलने लगी। वरना। ज़हरान ने बेख्तियार उसकी उंगली को पकड़कर उसे देखकर पूछा। वरना मैं आपका सर फाड़ दूंगी। जामिश अपनी उंगली छुड़वाते हुए ऊंची आवाज़ में कहते साथ कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने लगी, मगर उसकी कैद से आज़ादी न मिल सकी। तुम मुझे खुद के करीब आने से रोक नहीं सकती हो। ज़हरान उसके फ़रार होने का रास्ता बंद करता लफ्ज़ों पर जोर दिए बोला। मैं चीखने लग जाऊंगी, मुझे रास्ता दें। जामिश उसकी गुर्बत में घबराते हुए उसे डराने की कोशिश करते हुए बोली। ज़हरान उसे देखने लग गया और उसे रास्ता दिया। देखा, आप मुझसे डरते हैं। जामिश उसकी कैद से निकलती उसका मजाक उड़ाते कहने लगी। तुम्हारी सोच है। ज़हरान उसकी बात पर नफ़ी में सर हिलाकर उसे बोला। जामिश अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अजीब ही पागल आदमी है। जामिश कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए खुद से बोलती बेड की तरफ बढ़ गई।
جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.